بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 181 ملاحظہ فرمائیں۔ باقی سب کچھ وہی تھا جس آدمی کے لیے انسان ہونے کی شرط پوری ہوتی ہے: عقل و شعور، ذہانت اور شرافت، خلوص اور محبت اور درد دل، رشتوں کے احترام کی صلاحیت اور نیکی پر یقین رکھنے کی طاقت۔ دروازے پر اسی وقت دستک ہوئی تو میں چونکا، لیکن وہ ویٹر تھا جو چائے لے کر آیا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں تہی دست ہوں۔ میں نے اپنے بدلے ہوئے روپ پر اتنا بھروسہ کیا تھا کہ بے خوف و خطر خالی ہاتھ چلایا تھا۔ مجھے ان امکانات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس ہوٹل تک کوئی بھی شکاری ٹیڈی یا رابعہ کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچ سکتا تھا۔ ظاہری صورت میں تبدیلی صرف ٹیڈی کی شکل میں ہوئی تھی۔ رابعہ وہی تھی اور خدا نخواستہ کوئی اسے پہچان لیتا تو اس کے پیچھے پیچھے ہر جگہ جا سکتا تھا۔ ایک تشویشناک بات یہ تھی کہ میرے اس بدلے ہوئے حلیے کو چودھری دلاور کے کم سے کم 3 آدمی دیکھ چکے تھے۔ ان میں سے ایک مر گیا تھا، دوسرا ہماری تحویل میں تھا، لیکن تیسرا پولیس کی تحویل میں چلا گیا تھا۔ اور یہ بھی فرض کیا جا سکتا تھا کہ اسے دلاور اینڈ کمپنی نے چھڑا لیا ہوگا تو اب تک وہ ہماری محنت پر پانی پھیر چکا ہوگا اور بتا چکا ہوگا کہ سکندر بخت کا چہرہ اب کیسے پہچانا جائے گا۔ بے شک محسن کا دورہ چہرہ میری حفاظت کے لیے تھا، پھر بھی افشائے راز کے بعد یہ حفاظتی انتظام 100% مؤثر اور قابل اعتماد نہیں رہا تھا۔ اس میں 50% بے یقینی کے خدشات بھی شامل ہو جاتے تھے۔ دوسری بار کسی نے دروازے پر دستک دی تو میں نے چوڑیوں کی جھنکار بھی سنی اور اس نغمے ساز کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن خم آہنگ ہو گئی۔ تو میں نے جان لیا کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ ڈیڈی نے دروازہ کھولا تو میں نے مرزا غالب کے ساتھ رابعہ کو اندر آتے دیکھا۔ لو بھائی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، غالب نے اپنی فطری شگفتگی اور بسخرے پن کے ساتھ کہا، اور پہچان سکو تو دل کی آنکھ سے پہچانو۔ رابعہ کے لیے دونوں چہرے اجنبی تھے، مگر وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، پھر اس پر خنسی کا دورہ پڑا۔ میرے خدر کے کرتے، 4 خانے کی لنگی اور پشاوری چپل کے ساتھ مہندی رنگ کے گھنگریالے بالوں کو اور اسی رنگ کی مشت بری داڑھی کو دیکھ کر شاید رابعہ کو میرا اصل روپ یاد آیا، جو اس حلیے کے برعکس تھا۔ کہاں وہ روایت پسندی کی برطانوی عادت کہ میں سوٹ کے ساتھ وہ ٹائی بھی نہیں باندھتا تھا جو میچ نہ کرتی ہو، اور لباس کے معاملے میں اپنے جمالیاتی ذوق کو بہت اہمیت دیتا تھا، اور کہاں یہ دیہاتی وضع قطع۔ لباس سب قابل احترام ہوتے ہیں، مگر یہ لباس میری شخصیت سے متصادم تھا۔ ایمان سے بالکل وہی لگ رہے ہو، رابعہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، کہہ دو کارٹون، میں نے دانت نکال کے کہا۔ ٹیڈی مجھ سے زیادہ شرمسار کھڑا جھینپ رہا تھا۔ کارٹون تو خیر نہیں، جب میں چھوٹی سی تھی نا تو ایک شادی میں گئی تھی، رابعہ نے اپنی ہنسی پر قابو پا کے کہا۔ وہاں ایک تماشا دیکھا تھا، ایسے ہی 2 آدمی آ گئے تھے اور انہوں نے خواتین کے سامنے ایک ایکٹ کا مزاحیہ خاکہ پیش کیا تھا۔ ان میں سے ایک باپ تھا اور دوسرا بیٹا، دونوں کے ہاتھ میں جوتے کے تلے کی شکل کے بڑے بڑے چمڑے کے ٹکڑے تھے۔ ان میں سے ایک سوال کرتا تھا اور دوسرا کوئی نہایت ہی نامعقول قسم کا جواب دیتا تھا، اور وہ چمڑے کو یوں ایک دوسرے کے رسید کرتے کہ آواز تو بڑی زوردار آتی تھی لیکن چوٹ بالکل نہیں لگتی تھی۔ ان صوتی اثرات کے ساتھ انہوں نے مار مار کے ایک دوسرے کا برا حال کر دیا، لیکن اس سے زیادہ برا حال انہوں نے حاضرین و سامعین کا کیا۔ ایک تو انہوں نے باری باری سب کو رگڑا، سب کا تمسخر اڑایا، اور جس نے انہیں کچھ دے دیا اسے تو بخش دیا، مگر کنجوسی کرنے والے کے تو خاندان کی بھی ایسی تیسی کر دی۔ مذاق مذاق میں کہ کوئی برا نہ مان سکے، ہنس ہنس کے لوگ بے حال ہو گئے تھے۔ پھر مرزا غالب نے بولنا شروع کیا۔ میرے پیارے کوئی نور ہیرو، تم دونوں ہیرو نہیں زیرو ہو جاتے اگر گزشتہ شب میں نے تمہاری سب بلائیں اپنے سر نہ لی ہوتی۔ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام ایک مرگے ناگہانی اور ہے، میں نے کہا۔ مرگے ناگہانی سے بھی نہ جانے کس کی نیکی نے بچا لیا، مرزا غالب نے کہا، ورنہ ایک گولی کافی ہوتی۔ مجھے ایک تو تمہاری طرف سے تشویش تھی، میں نے کہا، مزید پریشانی خاتون نے پیدا کر دی تھی۔ رابعہ نے تو بہت جلد میری گلو خلاصی کرا دی، غالب بولا۔ وہاں سب اس فکر میں تھے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح اس چکر میں ڈال دیں۔ میں اپنی بات پر اڑا رہا اور انہیں دھمکی بھی دے دی کہ صبح تک اخبار کا مالک زمین آسمان ایک کر دیں گے، حالانکہ ان کو خاص خبر نہیں تھی کہ میں کہاں ہوں اور کس سال میں ہوں۔ وہ آدھی رات کے بعد اخبار پریس میں بھیج کر گھر جا چکے تھے۔ انہیں معلوم ہوتا تو بھی شام کو ہوتا، رابعہ کے آتے ہی پولیس والوں کو پریشانی ہونے لگی، حالانکہ اس سے پہلے ایک انسپیکٹر بڑی خبا سے دکھا رہا تھا کہ کیا اخباری رپورٹر قتل نہیں کر سکتے۔ وہ مزید تھا کہ میں چوکیدار کے قتل کا اعتراف تو کر ہی لوں۔ رابعہ نے وہ ڈانٹ ٹپٹ کی کہ معافی مانگنے پر اتر آیا۔ میں نے تو کہا کہ تم نے میرا ایڈیٹر پبلشر کی مستعدی دیکھی، میں نے تو کہا کہ تم نے میرے ایڈیٹر پبلشر کی تیزی دیکھی، اور کچھ دیر ہو جاتی تو تم پر خب سے بے جا مقدمہ ہو جاتا، نوکری چلی جاتی تمہاری۔ چلو ابھی تو خدا نے سب کی عزت و آبرو رکھی، میں نے کہا۔ تم نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا، ورنہ سازش کامیاب ہو جاتی۔
मगर यार ये सब बातें करने के लिए वक्त चाहिए और मैंने मोहसिन से कहा था कि 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। कहाँ वापस आ जाऊंगा? राबिया ने हैरानी से कहा। होटल से तो सामान उठा लिया था। वो भी कोई होटल था? मैंने कहा अब हम दूसरे 5 स्टार बल्कि 6 स्टार होटल में हैं। ख्वाजा नेक मोहम्मद, मैं गालिब और राबिया बाहर निकलते हैं, तुम सामान उठा लाओ। और ये क्या मुसीबत है? टैडी ने खफगी से कहा। अभी 2-3 घंटे पहले 2 कमरे लिए थे अमीर खान कबीर खान के नाम से। कोई बात नहीं, मैंने तसल्ली दी, कह देना कि अब वो नहीं आ सकते। दोनों गरीब खान फकीर खान हो गए हैं। वैसे भी इसमें कोई बात खिलाफ एक कानून नहीं। कोई 1 दिन के लिए कमरा ले और 1 घंटे के बाद चला जाए और अदायगी तो 24 घंटे की कर दोगे ना। मैं राबिया और गालिब होटल के उस हिस्से से गुजरे जो इस्तकबालिया समझा जा सकता था, तो मैनेजर और चंद दूसरे लोगों ने हम तीनों को बड़ी दिलचस्पी से देखा। दिलचस्पी का सबसे बड़ा सबब राबिया का हुस्न था। फिर मेरी हुर्रियत कज़ाई थी। गालिब सूरत से अहमक लगता था, तो राबिया की शख्सियत में दिलकशी के साथ ऐसा वकार था जो सबसे जुदा था और देखने वालों को हमारे दरमियान कोई कदरे मुश्तरक नजर न आती थी। टैडी के दोबारा नमूदार होने तक हम कुछ फासले पर इंतजार करते रहे और इस मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए मैंने उन्हें वो सब वाक़यात सुना दिए जिससे वो बेखबर थे। मैंने ये भी बता दिया कि टैडी ने नाजो के भाई SSI शेख की नीयत पर किस किस्म के शुबात का इजहार किया है। गालिब ने उसके ख्याल की तायद की। इन हालात में अंधे एतमाद से बहुत नुकसान हो सकता है, गालिब बोला। इसके अलावा हमारा साथ देने से नाजो के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, राबिया बोली। वो हमसे अलग रहकर हमारी ज़्यादा मदद कर सकती है। अभी तो मालूम करना पड़ेगा कि उसने बाद में सूरत-ए-हाल से कैसे निपटा, गालिब ने कहा। तुम ऐसा करो कि मुझे अपने 6 स्टार होटल का जिग्राफिया पूरी तरह समझा दो। मैं 1 घंटे के बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा और इस 1 घंटे में तुम क्या कुछ करोगे? एक तो अपने एडिटर को बताऊँगा कि रात को क्या कुछ हुआ था। क्या मतलब? उसे कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, मैंने कहा। यार मैं अपने बारे में बताऊँगा, तुम्हारा हवाला तक नहीं होगा, गालिब ने बुरा मान के कहा। माना कि सूरज से मैं चुगत नजर आता हूँ लेकिन इतना अकल से पैदल नहीं हूँ। उसको यही बताऊंगा कि मुझे टेलीफोन पर किसी ने इतला दी थी कि चौधरी दिलावर की कोठी में कत्ल हो गया है और मैं तस्दीक के लिए गया था तो फंस गया था। एडिटर को मालूम तो होना चाहिए ना। वो कहेगा कि तुमको कितना अरसा हो गया रिपोर्टिंग करते हुए। इतना नहीं समझते कि हर गुमनाम फ़ोन पर दौड़ जाना कोई अकल की बात नहीं होती। अक्सर लड़के शरारत करते हैं लेकिन जाना ही था तो बता कर जाते। फिर मुझे ये पता चलाना है कि चौधरी दिलावर के घर से उठाई जाने वाली अलिफ 3 की लाश और उस चौकीदार की लाशों के सिलसिले में पुलिस ने क्या रिपोर्ट लिखी है। और आखिरी बात ये कि मुझे उस शख्स के बारे में मालूम करना है जिसे तुम नादो के रहमो करम पर छोड़ आए थे। अगर वो टूटने फूटने के बावजूद जिंदा बचा होगा तो उसे पुलिस ले गई होगी, मैंने कहा। तुम उसके बारे में ये ज़रूर मालूम करना कि अपने बयान में उसने क्या कहा है, मेरे मुतल्लिक कुछ बताया है या नहीं। मेरा ख्याल है कि बयान से पहले उसे वही लोग ले गए होंगे जिन्होंने उसे भेजा था, राबिया बोली। गालिब ने तायद में सर हिलाया और उसने वफात पाने से पहले तुम्हारा नक्शा अपने अल्फाज से खींच दिया होगा। खैर आगे आगे देखिए होता है क्या। मिर्जा जी, मैंने कहा, तुम्हारा यार मूसा भाई तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। गालिब हंसा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं, अपनी जान का दुश्मन कोई नहीं होता। तुमने उसे कुछ कर्ज वसूल करने की बात की थी और उसने बाद में कहा था कि हिसाब बराबर हो गया। मैंने कहा हाँ यारो, उसका हिसाब भी बहुत पुराना था। गालिब ने सोच कर कहा, उसने मौके से फ़ायदा उठाया, ये बहुत पहले की बात है। उसका एक छोटा भाई था जो बहुत अच्छा फोटोग्राफर था लेकिन उसने अपने पेशे से गलत फ़ायदा उठाया। उसका छोटा सा स्टूडियो था जो देखते ही देखते बहुत बढ़ गया। जैसा कि मैंने सुना था वो कुछ ब्लैक मेलिंग करता था। गालिब ने तजब्जुब के साथ राबिया की तरफ देखा जैसे वो खुलकर बात करते हुए झिझक रहा हो। मिर्जा जी, ये खातून बड़ी नामवर वकील हैं, बल्कि रही हैं। मैंने कहा हर तरह के मुकदमात में इनकी शोहरत थी और डॉक्टर के अलावा सिर्फ वकील का पेशा ऐसा है जिसमें कोई भी हक़ाइक़ को छुपाता नहीं है। वो कुछ लड़कियों का चक्कर था, गालिब ने कतरे मुतमईन होकर कहा। उसने लड़कियों को और उनके वालिदैन तक को ब्लैक मेल किया था। फिर कुछ गलत किस्म के लोगों ने उसकी खिदमात हासिल करना शुरू कर दी जो खुद ब्लैक मेलर थे। ज़ाहिर है उसे बहुत पैसा मिला लेकिन उसके बाद करना खुदा का ऐसा हुआ कि एक लड़की ने उसे चक्कर में डाल दिया। हमने तो पहले ही फरमा दिया था, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, उसको ऐसा इश्क हुआ कि सब कुछ भूल गया। भाई के जरिए उसने नामो प्याम दिए और बात खासी उम्मीद अफजा हद तक आगे बढ़ गई थी कि लड़की के भाई ने उसे देख लिया। वो खुद उस फोटोग्राफर के हाथों ब्लैकमेल होने के बहुत नुकसान उठा चुका था। वो कैसे बर्दाश्त करता कि ऐसा बदकुमाश आदमी उसकी बहन का रिश्ता डाले। उसने अगर ये समझा था कि अब बहन ब्लैकमेल होगी तो गलत नहीं समझा था। जब फोटोग्राफर ने मूसा भाई के जरिए शादी का बाकायदा पैगाम दिया तो लड़की का भाई सख्त मुश्तइल हुआ। उसने मूसा भाई को बेइज्जत करके निकाल दिया और लड़की पर सख्ती की।
लड़की अड़ियल थी, बाप के और भाई के सामने अड़ गई कि शादी कहीं और नहीं करूँगी, और अगर ज़बरदस्ती की गई तो घर से भागकर अदालत में शादी कर लूँगी। भाई सख्त परेशान हुआ कि अब बहन को कैसे समझाए, लेकिन सूरत-ए-हाल की संगीनी के पेश नज़र कुछ न कुछ तो करना ही था। मज़ीद तफ्तीश करने पर पता चला कि मूसा भाई भी कम नहीं और अपने फ़ोटोग्राफ़र भाई की तरह बदनाम है। उसने बहन को बताया कि वो फ़ोटोग्राफ़र लड़का खुद भी बदनाम है और उसका बड़ा भाई भी एक ब्लैकमेलर है और दूसरा मुजरिमों का मावन। बहन ने सुनकर यकीन किया या नहीं, गज़ब ये किया कि एक दिन अपने भाई को अपने आशिक के सामने खड़ा कर दिया और बता दिया कि तुम पर क्या इल्ज़ामात है। फिर मालूम नहीं बात कितनी बड़ी और किसने किससे क्या कहा। अंजाम ये हुआ कि लड़ाई हुई, लड़की के भाई ने फ़ोटोग्राफ़र पर हमला कर दिया और उसके हाथों मारा गया। लड़की वहीं बेहोश पड़ी रह गई और फ़ोटोग्राफ़र वहाँ से भाग गया। मूसा भाई उसे रात के वक्त मेरे घर लेकर पहुंचा कि पुलिस उसके पीछे है। उसे रात भर के लिए छुपा लो। मैंने पूछा भी कि आखिर उस पर इल्ज़ाम क्या है, मगर मूसा भाई ने कहा कि इल्ज़ाम कत्ल का है लेकिन झूठा है। अगर तुम उसके हक में गवाह बन जाओ तो ये बच जाएगा। मूसा भाई की हालत देखकर मुझे तरस आ गया। मैंने कहा कि अच्छा तुम जाओ, ये ना हो कि पुलिस उसको तलाश करती हुई तुम्हारे पीछे पहुंचे। आधी रात के बाद यही हुआ, मुझे खुदा ने बचा लिया। न जाने क्यों मुझे अंदेशा था कि इस चक्कर में खुद मैं भी फंस जाऊंगा। मैं मूसा भाई के भाई के साथ निकल गया, उसे एक होटल में छोड़ा और खुद अपने ऑफिस चला गया। पुलिस ने लड़की के बयान पर मूसा भाई को पकड़ लिया और उसके भाई का पता पूछा। पहले तो मूसा भाई ने अनजान बनने की कोशिश की और लाइल्मी का इजहार किया, मगर हमारी पुलिस किसी जबान पर एतबार करने वाली नहीं है। वह मूसा भाई को थाने ले गए और थोड़ा सा बचाया तो मूसा भाई ने बक दिया कि कातिल कहाँ छुपा हुआ है। पुलिस 2 बजे रात को मेरे फ्लैट पर पहुंची तो मैं गायब था, लेकिन उन्होंने इजाज़त का रस्मी तकल्लुफ़ नहीं किया और कानूनी इजाज़त को गैर ज़रूरी समझते हुए ताला तोड़ दिया। वहाँ उनको नाकामी हुई तो वो अखबार के दफ्तर पहुंचे। एक तो मैं पहले ही से वहाँ अपने दिफाई इंतजामात मुकम्मल कर चुका था, फिर पुलिस खुद एक गैर कानूनी काम कर चुकी थी। उनको बाद में पता चला था कि घर किसी अखबार वाले का है। उल्टा मैंने उन्हें पकड़ लिया कि अभी खबर लगाता हूँ और एसपी से बात करता हूँ। वो बड़ी मुश्किल से गुलू खलासी करके भागे और मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहा कि चलो मैं तुमको माफ़ करता हूँ और तुम्हारी नौकरी तुम्हें बख्शता हूँ। तुम मेरे दोस्त मूसा भाई को बख्श दो और घर जाने दो। मेरी मदद से मूसा भाई सुबह घर पहुँच गया। फिर उसने मेरी खिदमत में हाजिर होकर कहा कि आइंदा उम्र भर के लिए वो मेरा गुलाम, क्योंकि मैंने उसके भाई की जान बचा ली। उसने थोड़ी सी मदद और चाहिए। अपने भाई के लिए उसने 2 पासपोर्ट बनवाए, एक असल सूरत के साथ, दूसरा बेकअप से बदली हुई तस्वीर वाला। उसका भाई बदली हुई सूरत लेकर बाहर निकल गया। ये बड़ी लंबी कहानी है कि मैंने और मूसा भाई ने पासपोर्टों पर वीज़ा स्टैंप किस तरह लगवाई। बाहर जाने के बाद उसने बेकअप उतार दिया और मेकअप की तस्वीर वाला पासपोर्ट भी ज़ाया कर दिया। अब वो असली नाम और पासपोर्ट के साथ बाहर आबाद है। मैं ये भी जानता था कि वो कहाँ है और उसके जुर्म की नोयत भी मुझे मालूम हो चुकी थी। मेरी मदद और खामोशी के बगैर मूसा भाई का भाई महफूज नहीं था। उसके खिलाफ पूरा केस मौजूद है और वो एक मफरूर मुजरिम है। कत्ल के केस में मुकदमा कभी ख़त्म नहीं होता। बिला इरादा और कुछ अपनी हिमाकत के बायस मैं भी शरीके जुर्म हो गया था। मूसा भाई ने इसलिए मेरी मदद से कभी इनकार नहीं किया और सच्ची बात यह है कि मैंने भी सिर्फ इंतहाई ज़रूरत पड़ने पर उससे रुजू किया। उसे ब्लैकमेल करने की नीयत से नहीं। भाई मैंने उसकी मदद की थी तो क्या उसका फ़र्ज़ नहीं था कि मेरी मदद करता? उसका भी इसने तुमको पहचान लिया, ज़ाहिर है अब हिसाब बराबर है। मैं भी नहीं बोल सकता और उसके बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यह हो सकता है कि उसने तुम दोनों की तस्वीर बेकअप में उतार ली हो, मगर कोई बात नहीं। गालिब चुप हो गया क्योंकि खोजी यानी ख्वाजा नेक मोहम्मद उर्फ उस्ताद टैडी सख्त बरहमी के आलम में तशरीफ़ ला रहे थे। बाकी इसबाब तो एक कुली नुमा मजदूर ने उठा रखा था, लेकिन उनका वो मौजूद दाड़ू के आसारे कदीमा का नमूना संदूक खुद उनके पास था और हमेशा की तरह उसका बोझ उठा के चलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। आज कुछ भी हो जाए मैं इस संदूक को ज़रूर खोल कर देखूंगा, गालिब ने कहा। हाँ यार, आखिर से ये संदूक इतना अजीज़ क्यों है जिसे कबाड़ी लोहे के पाव में भी ना खरीदे? मैंने कहा। और इस जंग खुर्दा संदूक में आखिर है क्या? इतना भारी तो सिर्फ सोना ही हो सकता है। सोना? गालिब था। 20 शेर से ज़ायद सोना होता इसके पास तो ये हमारे साथ होता। क्या बात है, क्यों हंस रहे हो तुम लोग? टैडी ने आंपते हुए कहा और फिर कुली से मुखातिब हुआ। रखते सामान इधर ही फुटपाथ पर और देख ये तो है अपने यार, तू क्यों दांत निकाल रहा है? उसे पुरानी आदत के मुताबिक फहश गाली बकती जिसका उसे कतई एहसास नहीं हुआ था। सारे दांत निकाल कर हाथ पर रख दूंगा। क्यों इतने गुस्से में हो ख्वाजा साहब? मैंने कहा। कुली सख्त बदहवासी में फरार हुआ।
बाहर में गए खोजी साहब और ख्वाजा साहब। डैडी ने संदूक को नीचे रखकर बैठते हुए कहा, कसम मौला की अपना पुराना खून कभी कभी जोश में आ जाता है। अभी एक बैरा बच गया वरना अंतड़ियां ढेर कर देता। पहले मुझ पर फिक्रा कसा और मैं पी गया। फिर संदूक के बारे में एक बात कही, मैं फिर भी खामोश रहा। साला आखिर में कहने लगा, अमीर खान कबीर खान इतनी जल्दी गरीब खान फकीर खान हो गए। मैंने कहा, उल्लू के पट्टे, मैं तुझे तेरे होटल को, उसके मालिक को और तेरे सारे खानदान को खरीद कर कौड़ियों के मोल बेच सकता हूँ। दूसरे दरमियान में पड़ गए मगर वो भी सब खी खी कर रहे थे। सब तुम लोगों की वजह से हुआ। एक तो मेरी सूरत ऐसी बना दी है कि अम्मा भी ख्वाब में देखें तो डर जाएंगी। हम सब बेसाख्ता हंसने लगे। डैडी ने हम सबको हंसते देखा और फिर खुद भी हंस पड़ा। एक बार फिर टैक्सी हासिल करने का मसला पैदा हुआ। गालिब ने पहले अलग जाने और बाद में पहुंचने का कह दिया था। मैंने उसे सिगरेट का एक पैकेट फाड़ कर उस जगह का नक्शा बना दिया जहाँ मोहसिन तमाम असला और जंगी कैदी लिए MRS की खाई कमान के इंतजार में बैठा हुआ था। उसे यकीन कामिल के साथ कहा था कि वो हमारे 6 स्टार होटल को तलाश कर लेगा। जाने से पहले उसने हमारे लिए टैक्सी के उसूल का मसला हल किया, क्योंकि शरीफाना दरख्वास्त पर कोई टैक्सी वाला ऐसे वैरान इलाके में जाने को तैयार न था जहाँ से उसको वापसी की सवारियाँ मिलने की उम्मीद ना हो। गालिब ने कांस्टेबल को अपना प्रेस कार्ड दिखाकर डांटा और कांस्टेबल ने तकरीबन टैक्सी के सामने खुद कशी की नीयत से कूद कर एक ड्राइवर को बेगार में पकड़ा। खबरदार जो साहब से पैसे लिए। कांस्टेबल ने घुर्रा के कहा, फिर तो आप भी बैठ जाओ साहब। टैक्सी ड्राइवर ने तन से कहा, मुफ्त की सवारी है। नहीं भाई, अब मूड में नहीं है, गालिब ने कहा और वापस चल पड़ा। बाकी सामान रखने से पहले ड्राइवर ने गलती से टैडी का संदूक उठाना चाहा जो उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा भारी था। चुनाचे हाथ से छूटा तो पैर पर गिरा। जले भुने ड्राइवर ने संदूक को और उसके बनाने वाले को गाली देने पर इक्तफा की। वो उसके मालिक के बारे में कुछ इरशाद करता तो बचता था। डैडी ने उसे डांटा कि जब दम नहीं है तो नाजुक चीज को हाथ क्यों लगाती हो, और संदूक खुद उठा के डिक्की में रख दिया। ड्राइवर ने दम ना होने वाली बात का इतना बुरा नहीं माना जितना इस बेहुदा संदूक को नाजुक चीज कहने पर हैरान हुआ। उसने कहा कि अभी तो इस नाजुक चीज ने पैर ही तोड़ा है, कहीं आगे जाकर गाड़ी का एक्सल ही ना तोड़ दे। हम सब इस किस्म की गुफ्तगू से महफूज हो रहे थे। इससे ज्यादा लुत्फ हमें उस वक्त आया जब मंजिल मकसूद पर पहुंचकर मैंने उसे 100 का नोट दिया और उसे बाकी रकम अपने पास रखने को कहा। हम किसी पर जुल्म नहीं करते, मैंने फ्याजी से सरशार लहजे में कहा, लेकिन जरूरी है कि तुम लोग भी जुल्म करना छोड़ दो। टैक्सी में सब जरूरतमंद लोग ही बैठते हैं, डैडी ने उसे मशवरा दिया। जब टैक्सी नजरों से ओझल हो गई तो मैंने इशारे से वो जगह बताई जो भी वहां से 100 गज दूर थी। यह है वो 6 स्टार होटल जहाँ कैदी के साथ जेलर भी बंद है। मैंने कहा, सिकंदर बादशाह इतनी दूर क्यों रोक लिया टैक्सी को? डैडी ने अपने भारी भरकम संदूक की तरफ देख कर कहा, तो क्या है दरवाजे के आगे रोकते जहाँ से बिल्कुल मेरा खम शक्ल दूसरा निकल आता? मैंने कहा, टैक्सी वाला याद रखता, तुम छोड़ो ये संदूक मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं, ये बात नहीं। डैडी जल्दी से बोला, उसे तो मैं उठा लूंगा, बस जरा मेरे सर पर रखा दो। जब मैंने संदूक उठवाने के लिए हाथ लगाया तो एक बार फिर मुझे उसके गैर मामूली वजन का एहसास हुआ और मैंने राबिया की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में इस अज़म का इरादा किया कि आज इस संदूक के राज से आगाही हासिल करके ही दम लेंगे। दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते टैडी की हालत गैर हो गई, लेकिन उसने संदूक को गिरने नहीं दिया। मैं उसके पीछे चल रहा था और ये देख रहा था कि संदूक के गिर्द वही एक रस्सी लिपटी हुई है जो हमने टैडी के घर से फरार होते वक्त संदूक को बंद रखने के लिए बांधी थी। ये रस्सी भी अब ढीली हो चुकी थी और अगर संदूक गिर जाता तो खुल जाती या टूट जाती। इस रस्सी के अलावा मुझे संदूक को बंद रखने वाली एक पुरानी कुंडी भी नजर आई थी, मगर संदूक गिरता तो ये कुंडी यकीनन अलग हो जाती। मुझे तो संदूक के बारे में भी शुबा था कि इतने वजन के साथ गिरा तो इस संदूक का क्या बनेगा। मुझे अचानक शरारत सूझी और मैंने पीछे से टांग आगे बढ़ा के टैडी की टांग में अड़ा दी। वो पहले लड़खड़ा रहा था, चुनाचे मुंह के बल गिरा। संदूक उसके सर से काफी फासले पर आगे गिरा। मैंने ये जाहिर किया कि मैं खुद ठोकर खा के संभल नहीं सका। राबिया ने मेरी शरारत देखी और मुस्कुरा दी, मगर मिस्टर टैडी सचमुच यही समझा था कि हम दोनों का तसादुम एक हादसा था। माफ करना यार। मैंने खुद उठने के बाद टैडी को उठाया। चोट तो नहीं आई? नहीं। वो लंगड़ाता वो उठा और कपड़े झाड़ने लगा। टीन का संदूक इस शेड नुमा इमारत की दीवार से टकराया था जो मैंने और मोहसिन ने कुछ देर पहले किराए पर ली थी। आवाज पर मोहसिन ने दरवाजा खोला। आगी बारात? मोहसिन बोला। बड़ी धूमधाम और धमाके के साथ आई है। और कितनी पाबंदी है वक्त से। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। मैं 2 घंटे का कहकर 4 घंटे में लौटा था। आप अकेले तशरीफ नहीं ला सकते थे? उसने राबिया को देकर कहा, यहाँ खवातीन का दाखिला ममनू है।
3 کہاں محسن بھائی, میں اکیلی ہوں, رابعہ نے اندر جاتے ہوئے کہا اور ہنسی. اس کے علاوہ میں خود ساتھ آ گئی ہوں. ہاں سکندر تو جب لائے گا تب لائے گا, ابھی تو مان نہ مان میں تیری مہمان اور بلائے جان, محسن بولا. اور رابعہ نے اسے گور کر دیکھا مگر وہ باہر نکل آیا تھا اور سامان اٹھانے میں مدد کر رہا تھا. ایک سوٹ کیس رابعہ کا تھا, ایک محسن کا اور ایک میرا. آخر میں ہم نے مل کر ٹین کے صندوق کو دونوں طرف سے اٹھایا کیونکہ اس میں کبھی کوئی ہینڈل تھا تو بہت پہلے داغے مفارقت دے چکا تھا. خبر مروات کا, اس مصیبت نے ابھی تک ساتھ نہیں چھوڑا ہمارا. محسن اندر پہنچ کر خامتے ہوئے بولا, میاں شیروانی اس میں خالص سونا ہے, تقریباً 1 من تو ہوگا. میں نے کہا تو محسن نے ایک دم ہی صندوق کو چھوڑ دیا. لعنتی سونے پر جسے ٹوٹے ہاتھ. محسن نے محاورے میں مناسب تبدیلی کر کے کہا, لعنت تو تجھ پر. میں نے کہا بھی محاورے کا ہی نہیں, میرے پیر کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا. یہ کوئی میری بیوی کی سسرال نہیں ہے. محسن نے خفگی سے کہا, یعنی میرے باپ کا گھر نہیں ہے کہ چلے آ رہے ہیں MBBS. اور پھر دروازہ بند کر دیا. ٹھیڑی جلدی سے اپنے صندوق پر بیٹھ گیا.